So, so first of all, I would like to welcome Shelly, rank 308, and let me give a different introduction. That Shelly attempt first was not able to clear the prelims. Shelly attempt two was not able to clear the prelims. Shelly attempt three was not able to clear the prelims. Shelly attempt four was not able to clear the prelims. Shelly attempt five not only cleared the prelims, cleared the mains, got the rank. There are many candidates who are burdened with family expectations, pressure, other things. And as I met Shelly's family, so I would say she was burdened from the kind of love and care they were giving to her, and the kind of support her family gave her to during the preparation time. And when I met her, तो देयर वाज अ जोक कि मोहल्ले के लोगों को लगा करता था ये सिर्फ एनिमल्स को ही प्यार करती है और बस कुत्तों को बाहर बिस्किट डालने जाती है। तो बहुत कम लोगों को पता था कि शी वाज प्रिपेयरिंग एंड शी कम्स फ्रॉम ए प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली। और इंटरव्यू में इसकी जो ब्रांच थी वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए एंड शी वाज लाइक अब तो बस कर दो, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कर लो। So, a brief introduction, but I requested Shelly to take this session because reason being that many of you were not able to clear the prelims. It could be your first attempt, second, third, fourth, fifth, whatever. So Shelly gives a hope कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो, लेकिन अगर हमारी स्ट्रेटजी सही है और अगर हमको एक मौका मिले, एंड Shelly was looking for that one chance where she proved कि यस मैं कर सकती हूँ. So without wasting much time, क्योंकि everyone wants to hear Shelly. So Shelly, can you please start? And many of them were Yes, not sir. able to clear the prelims. So can you please like share your thoughts and other things? Yes, sir. So first of all, I would say that, sir, should I do it in Hindi, English, or Mix, mix, mix? mix is fine. Yeah, mix is fine. Okay, okay, sir. Ji. So first of all, I know the feeling when you type your roll number and you don't find it. It would be the same feeling which a first time candidate would have, and the same feeling would be there if the candidate is sitting for the exam for fourth time or fifth time. So I can totally relate to the feeling you all are feeling at this point of time. So it's nothing alien to me. I have been there back to back. My journey started for UPSC in 2015, and today it's 2021. So I would say it's been a long journey, but a fruitful one. And at the end of the day, I would just have one word when I see my name in the list and when I will see my service allocation. Just one word. I'm grateful to be there where I am today. No hard feelings, nothing, because I see people also not happy with whatever they rank they got. They are aspiring for something else in their life, but at the end of the day, I I just want to say one thing: ki it doesn't depend where you come from. It always matters where you want to go and what thought process you have in your mind. So just two or three things which helped me persist in this journey was, first of all, as sir pointed out, when I lost my all hope, my family was there to pick me up and had always been there, and they are still today they are still there. So it's their struggle also. So first of all, my family support. Second, I would say hard work plays a big role. Shelly, kindly check your internet. And guys, please do not type anything in the chat box. Once she will finish whatever she is sharing with you, she will take up the question. But if you keep on sending the message, then it irritates. Yes. So sir, अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है शैली, अभी ठीक है. जी, जी, जी. So I know the feeling you all might be experiencing at this point of time. So I'll narrate my journey from the very start. I gave my first two attempts when I was doing my MTech from IIT Delhi. In my first attempt, I was very naive mid my preparation, because in my first two attempts, I would say, because I didn't have the direct
I would say I was not having a required like Shelly, you are guidance audible. there. Shelly, you are audible. Just give me a second. Guys, please do not type anything on the chat box. It irritates. You have to check your side audio. Kindly click on the audio button and then click join audio. Please don't type, otherwise I have to disable the chat box. Please don't. It's a humble request. Yes, Shelly, please continue. Hello. Yes, yes, please continue. Yes, sir. So it started in 2015. First two attempts I didn't have the proper guidance. My third attempt I missed the prelims by I guess 3 marks, and in my fourth attempt I cleared the GS cutoff and I failed in CSAT. So I've seen all the phases which anybody might be like यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे जो जीएस में पास हुए होंगे, सीसैट में फेल हो गए होंगे, तो आई हैव ऑलवेज बीन देयर. मैंने ऐसा कोई स्टेज नहीं है जिसमें मैंने फेलियर ना देखा हो. प्री के केस में अगर मैं बोलूं तो like in my 2019 attempt, after I gave my prelims, I was quite confident that I'll clear. I wrote 4 ethics papers even before the pre results came out, and then the day when pre results came out, everything was shattered for me at that day because I failed in CSAT. Like when the mark sheets came, I had 112 in my GS, and my CSAT score was, I guess it was 58. And so at that point of time, it's like my whole, like I come from a very prestigious institute, IIT Delhi, and I failed in CSAT. So उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मेरा confidence check करने के लिए कोई और चीज हो सकती थी. For literally 2 months, I did nothing. I was just in a phase where I didn't want to give UPSC again. I gave up on everything. I would say I gave up on everything. But after 2 months, with the support of my family, I started my preparation again. And this time I cleared the prelims, I wrote the mains, and got a rank. I'm very satisfied with whatever rank I have at this point of time because it, it doesn't matter what you get. It all matters you what you do with whatever you have in your life. So I prayed for this day and it's there. So I just want to say one thing to everybody and anybody who's here who feels dejected at this point of time कि नहीं हो पाएगा. I have just one word. If you can persist long enough, no, everything will be everything will fall into line the day it wants to. और उसके बाद वही है कि लक का फैक्टर बहुत हैवी होता है, बट यू नीड टू डू योर हार्ड वर्क फॉर इट. हार्ड वर्क लक को बहुत ज्यादा कंपनसेट करता है. ये चीज मैंने अपने उसमें केस में देखी है. और स्ट्रैटेजी के लिए मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब आप अगर मेरे से पूछोगे कि मैंने ऐसा क्या चेंज किया कि 3 बार मैं कट ऑफ से बहुत नीचे थी और उसके बाद मैंने कट ऑफ बहुत बहुत सही मार्जिन से क्लियर किया है दोनों अटेम्प्ट्स में. तो उसके लिए आई वुड से जस्ट वन थिंग: keeping my resources limited, repeated revision, and previous year questions has been my backbone. That's all. And apart from that, the mindset you with which you attempt your paper also matters. आप उस दिन एग्जाम हॉल में उस 2 घंटे में क्या फील कर रहे हो तो वो बहुत मैटर करता है कि अब या तो मैं उस दिन वहाँ 4 साल का बैगेज अपने साथ लेके जा सकती थी या ये होप लेके जा सकती थी कि अभी और कुछ शायद गलत नहीं हो सकता, जितना डाउनफॉल होना था कुछ नहीं है. नाउ एवरीथिंग आई हैव इज लाइक आई थिंक all I have is to gain, nothing to lose at that point of time. This was the mindset when I entered my prelims exam this year, my mains exam, and my interview also. So I would say there may be some problems in your strategy. There may be some problem in the sources you follow, but at the end of the day, I would just say one thing: it's doable. It's very much doable. At this point of time, you might be feeling that this thing might not be made for me, but it's doable if you persist long enough. And सर उसके अलावा मैं अगर अब सर यहाँ पे स्ट्रैटेजी का मुझे नहीं लगता कि सर फर्क यार पड़ता पता है. है स्ट्रेटजी से ज्यादा ना, चलिए स्ट्रेटजी से ज्यादा ना, एक वो जो एक फियर आता है ना कंसिस्टेंट जी. फेलियर के बाद, दूसरा प्रेशर आता है कि जॉब करें क्या, कुछ और करें क्या, क्या हमसे होगा कि नहीं. और वो एक डिप्रेसिव जो साइकिल आती है, लाइक यू हैव फेस्ड आफ्टर योर लाइक फोर्थ अटेम्प्ट, तो वो जो फीलिंग है, तो उससे ये लोग बाहर कैसे निकले, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, कई बार ऐसा होता है ना कि हेलो. एक्सटर्नल फैक्ट, हेलो,
Am I audible, जी जी शैली? यस सर यस सर हाँ जी हाँ, हाँ फिर जी हाँ जी कई बार ऐसा भी होता है ना कि एक्सटर्नल जो फैक्टर हैं वो तैयारी पे हम्म हावी होना चालू होते हैं, मे बी फैमिली प्रेशर और कुछ जी और जो भी है ना? तो तो सर उस वही सेंस में कि तुम्हारी वो एक लंबी जो जर्नी रही उस पे कुछ इंसाइट प्लीज शेयर। यस सर I would say the first thing is the pressure you build upon yourself. That's what I did. मेरा जो प्रेशर था वो उस चीज से आया था कि आई फेल्ड इन सीसैट। उस दिन मुझे लगा था कि शायद ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है। बट फिर उसके बाद भी पता है यही चीज जैसे एनालाइज योर मिस्टेक्स। यू वुड हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द एग्जाम दैट्स व्हाई यू आर नॉट क्लियरिंग इट। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो एवरीथिंग यू आर डूइंग गुड। आई वुड टेल माय मिस्टेक वेरी क्लियरली। What I did in CSAT was I attempted just 43 questions. And all the times I am though I come from a science background but मेरा इंग्लिश वाला पार्ट भी काफी स्ट्रांग है तो मैं हमेशा कॉम्प्रिहेंशन पे बैक करती हूँ। बट 2019 का कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस वर वेरी मच डिफरेंट एंड द ऑप्शंस वर वेरी क्लोज एंड द आंसर वाज डिस्प्यूटेड। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने 24 कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट किए थे, बाकी मैंने मैथ्स वाला पोर्शन अटेम्प्ट किया था। तो उस वजह से जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन ऑप्शंस ऊपर नीचे हुए ना उसकी वजह से आई फेल्ड। सो यू नीड टू एनालाइज योर मिस्टेक्स। सेकंड इसकी वजह से आप प्रेशर बिल्ड करते हो अपने ऊपर, लेकिन ये चीज हमेशा रहती है कि इफ यू सिट डाउन विद योरसेल्फ विद अ वेरी ऑब्जेक्टिव माइंड विदाउट एनी इमोशनल साइड टू इट, यू विल बी एबल टू एनालाइज योर मिस्टेक्स. So don't be so hard on yourself, first of all. As sir said, there may be external pressure, but one thing I would say, don't be so hard on yourself. Second, there may be family pressure. I'm clearly understanding the problem which many of you might be facing. Family pressure hota hai. It's very real. मेरे केस में नहीं था, but still, I would just say one thing. Your parents are your चलिए आवाज नो, यू आर नॉट hello. ऑडिबल। एक यस, नाउ सेकंड नाउ सर. सर पता नहीं नाउ यू क्या आर ऑडिबल। दिक्कत हो. कोई बात नहीं। ईयरफोन्स हटा देती हूँ या तो अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है, बढ़िया है। जी ठीक है। तो सर सेकंड चीज की ऑलवेज ट्रस्ट योर पेरेंट्स। और अगर आप उनके साथ बैठ के बात करोगे ना एंड यू गिव देम प्रॉपर रीजनिंग व्हाई यू वांट टू गिव दिस एग्जाम एंड सेकंडली you need to show them that you are doing hard work with honesty. You cannot make a fool out of them. If they are trusting you with everything they have in your life, then you need to establish that trust and keep that trust alive in your life. So आप अपना काम कीजिए, आप उनसे बैठ के बात कीजिए। आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे भी पेरेंट्स इतने ज्यादा इरेशनल या फिर इतने ज्यादा आपको करेंगे कि आपको मना कर देंगे कि आप मत करो। तो उस चीज के लिए सोल्यूशन ये है। थर्ड, societal pressure. Society is the last thing you should worry about in your life. That's it, I would say. Just one clear line. Because today they remember you, today they remember me, कि मेरी रैंक आई है, but the next day they'll forget it. So it's very transitory. Be it a failure or be it a success, be it a very huge success, anything and everything, it doesn't matter to them. And उनका opinion तो कभी भी matter करना ही नहीं चाहिए. The only opinion जो मैटर करना चाहिए, the opinion you have of yourself and your family and your close circle have of you. That's it. That should be the only thing that should matter. और इसके साथ साथ मैं मानती हूँ कि कहीं कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं. These are very real things. But at the end of the day, I would just say one thing. If you have dreamt, no, everything else you have that strength within yourself to overcome. So if your belief in yourself and your dream is so high, na, I think you all will be able to clear the hurdles which you see today in your life. Be it a hurdle from the society side, be it a hurdle from family side, be it any hurdle. And at this point of time, I would just say one thing. Keep faith in yourself at the end of the day. If you lose faith in yourself, no, nothing else matters then. That's all. तो सर प्रेशर के बारे में तो वही चीज है सर, प्रेशर आएगा इसमें और
यस यस यस, शैली कंटिन्यू। और सर प्रेशर आज नहीं आएगा, ये आपको सीखना चाहिए कि प्रेशर कैसे हैंडल करना है। द रियल प्रेशर विल बी देयर व्हेन यू विल बी ऑन ग्राउंड, when बिल्कुल on your one decision the life of so many people will be dependent. So you need to know how to handle pressure. That's a basic human quality, or I would say a basic civil servant quality which you should have. That be it any adversity, be it any chaos, be it anything in your life, you need to convert into an opportunity. You should have that mindset and that attitude in your life. So even if you're failing today, even if you're feeling like everything has fallen apart, I would just say one thing: learn something out of it which will help you in your life in long term. बिल्कुल। And there are two things I would like to add. One quality which Shelly has, and I like that most, ki she is happy with the rank, she is happy with the service. And I can tell you, there are many who are not happy. Even there are many who is going to get IAS, they are not happy कि यार कार्डर बुरा मिलेगा। जिनको इंडियन पुलिस सर्विस मिल रही है कि यार थोड़े और नंबर होते, IAS ही मिल जाता, कुछ भी रहता। ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन तो यार ये एक चीज है ना, अगर नहीं है तो फिर वो कहीं नहीं है। सेकंड पॉइंट जो शेरी ने बोला वो बहुत अच्छा बोला, सोसाइटी वाला। लेट मी ऐड सम ऑफ द थिंग्स देयर। जिस दिन सोसाइटी ने तुम्हारी लाइफ डिसाइड करना चालू कर दिया ना, दैट डे यू डाई, दैट इज योर लास्ट डे ऑन दिस प्लैनेट, दैट डे यू डाई। तो सोसाइटी कैन नॉट डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू लिव एंड व्हाट काइंड ऑफ करियर यू आर गोइंग टू चूज, राइट। शैली, फिर एक चीज ये आती है ना कि एक सक्सेसिव अटेम्प्ट के बाद में अपने आप को खुद को दोबारा से खड़ा करना। Look, जी everyone has a limited number of attempts. Like you are having limited number of attempts, ठीक है? तो अटेम्प्ट सभी के पास में है, लोग कोशिश करते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर से देते ही हैं। लेकिन जी हर अटेम्प्ट के बाद में कहीं ना कहीं एनर्जी डिप्लीट होती है। जी तो खुद को संभालना कि नहीं नहीं, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। तो वो फेज को कैसे यू हैव हैंडल्ड? सर, उसके लिए मैं बोलूंगी कि वही मेरी चीज में आपको भी पता है कि मेरी फैमिली का कितना बड़ा रोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फैमिली सपोर्ट व्हिच ऑलवेज kept that fire inside me alive. It never dozed off. So first thing, and especially in that case I would say my brother. वो मेरे से छोटा है, but the way he picked me up, I would say he's at that point of time he was more mature than I was when I was at my lowest. उसके बाद how you come out of it and how you get back to it, it's all about what is at stake in your life for this one thing. लोग कहते हैं कि don't make UPSC your life. I would agree to it. Don't make UPSC your life, but at least you have a dream. So जब तक जाना तब तक तो लगा सकते हैं ना। तो एक फेथ उस चीज में। और सर एक चीज आप बोल रहे हो कि मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता था, मुझे एक चीज पता थी कि मैं मेहनत कर रही हूँ, बहुत ऑनेस्टली मेहनत कर रही हूँ, मुझे ये चीज पता थी, मैंने कभी खुद से बिल्कुल झूठ नहीं बोला। तो मेरा जो स्ट्रेंथ था, मेरे को पता था कि मैं हार्डवर्क पूरा कर रही हूँ, बस चीजें अलाइन होने की जरूरत है और रैंक निकल जाएगी, मुझे इतना पता था। मुझे 110% ये चीज पता थी कि चीजें जिस दिन अलाइन हो गई ना, उस दिन रैंक निकल जाएगी। और वही चीज कि आप कैसी चीजों से अपनी मोटिवेशन डिराइव। आवाज चली गई शैली। Shelly, your voice is gone. Shelly, your voice is gone. एग्जांपल ऑफ माय Shelly, सिस्टर। जी थोड़ी आवाज चली गई थी। जी जी अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ जी। तो आपको मोटिवेशन ड्राइव करने के लिए एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद के एफर्ट्स से बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आर यू डूइंग व्हाट यू नीड टू डू इन योर लाइफ? सेकंड, आप अपने आसपास देखिए यार, मतलब लिटरली आपके पेरेंट्स से ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है इस टाइम पे आपके आसपास, अगर आप देखोगे तो। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वो आपके पास सिर्फ एक काम है, टू डू योर वर्क एंड टू स्टडी ऑनेस्टली, तो आप उतना तो कर ही सकते हो लाइफ में विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है आपके पास। तो वो मोटिवेशन मोटिवेशन बहुत क्लीशे वर्ड यूज करते हैं लोग, मतलब कि मोटिवेशन
टिड कैसे रहोगे आप 4 अटेम्प्ट के बाद, 5 अटेम्प्ट के बाद, या फिर हर बार गिरने के बाद? आप लुक अप टू क्या करते हो और आपको क्या लगता है कि क्या स्टेक है अपनी लाइफ? आप क्या चीजें स्टेक पे रख के ये चीजें कर रहे हो? आप अपनी फैमिली, खुद को और अपने फ्यूचर और हर चीज को स्टेक पे रख के कर रहे हो ये सब चीजें। मैं मानती हूँ, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। इंजीनियरिंग में भी आई वाज टॉपर, उसके बाद आईआईटी में भी आई डिड गुड, एवरीथिंग। आई नेवर सेट फॉर प्लेसमेंट्स बिकॉज आई हैड वन थिंग इन माय माइंड कि मुझे ये करना है। लेकिन उसके बाद अगर मैं 4 साल, अब मेरी रैंक आ गई है, लेकिन अगर मैं पीछे चौथे अटेम्प्ट में जब मैं सीसैट में फेल हुई थी और मैं वहां पे बैठ के अगर सोचूं एक चीज और मैं बोलूं कि वहां पे वॉइस इज गॉन शैली। आवाज 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 आवाज। मैनेज कर पाओगे, तो इट्स वेरी नेचुरल टू फील होपलेस। बट अगर करना है तो करना है, फिर वही बात है। कई बार ना लोगों के साथ में क्या होता है ना कि जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स पूरा एफर्ट मार रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, लोग ओआरएन में भी हैं, सब हैं। तो लोग ना कई बार जैसे तुमने बोला ना कि खुद पे बहुत हार्ड नहीं होना है। लोग बहुत हम्म। ज्यादा हार्ड होने की कोशिश करते हैं कि अरे यार देखो मेरे पेरेंट्स कितना कर रहे हैं और मैं तो कुछ हम्म। कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो सब भी बर्डन आई थिंक एक वो बर्डन है जो अननेसेसरी बर्डन है, जिसको लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आइडियली ना पेरेंट जितना करते हैं ना, दे आर डूइंग इट आउट ऑफ सेल्फलेस लव। यस कोई कंपल्सन नहीं है पेरेंट्स को कि करना ही है तुम्हारे लिए, सेल्फलेस लव है यार। सर, और एक अगर चीज अगर तुम फेल बोलूं भी, यस 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 प्लीज प्लीज। जी, आप बोल रहे हो कि हम बहुत हार्ड हो जाते हैं खुद के ऊपर। एक बात बताइए सर, is it humanly possible to study for 14 hours every day consistently for 7 days? नो। No. It's very I'm not refuting any top or any other candidate who has secured a rank. I'm just telling from my personal experience, and take everything I'm saying with a very pinch of salt. But what I am saying is from my experience. मेंस के 1 महीने पहले भी अगर मैं बताऊं तो मेरा हाईएस्ट जो कभी टच हुआ है ना, मैं स्टॉप वॉच लेके बैठती थी अपनी स्टडी टेबल पे। तो मेरा हाईएस्ट कभी 13 घंटे क्रॉस हुआ है, और वो भी मेंस से 1 महीना पहले, और उस 1 महीने में भी शायद 4 या 5 बार ही। वरना अगर मैं कंसिस्टेंटली बोलूं कि मैं कितना पढ़ती थी मेंस के उस 3 महीने में, तो हर रोज शायद मेरा 10 साढ़े 10 घंटे निकलता था। लेकिन वो ऐसा निकलता था कि मैं सिर्फ उस टाइम पे पढ़ती थी और कुछ नहीं करती थी। तो आपको अपने ऊपर इतना हार्ड होने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई टाइम पे आप थोड़ा एंजॉय कीजिए उसके टाइम पे। शैली आवाज चली गई। आप उस चीज का बर्डन लेके कभी भी कुछ गेन नहीं करोगे। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली 10 घंटे पढ़ोगे ना, तो आपको वो 2 घंटे खुद के लिए देने में दिक्कत नहीं होगी। और खुद के लिए देने में मैं क्या चीजें बोलूंगी, कीप अ वेरी वेरी कीप अ चेक अपॉन योर डाइट एंड योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। आप योगा मेडिटेशन कुछ ऐसी चीज पिक कीजिए ना जो आपकी पर्सनालिटी को रीशेप करे और रिफाइन करे लाइफ में। या फिर जो आपको पसंद है आप वो चीज फॉलो कीजिए। वरना ये प्रेशर बहुत बिल्ड होता है। इट दिस एग्जाम इज मेंटली वेरी टैक्सिंग, आई वुड से। ये फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के लिए भी इतना ही टैक्सिंग रहता है और फिफ्थ अटेम्प्ट वाले के लिए भी इतना ही टैक्सिंग रहता है। तो आपको कुछ चीजें चाहिए जहां से आपका जो ये प्रेशर है ये रिलीज हो सके। तो don't be hard on yourself. I would just say one thing, and very honestly I'm saying, if you know, if you have studied for 10 hours in a day very efficiently, you yourself will not be very hard on yourself. Sometimes this thing comes from your own failure, when you are not able to follow your plan, when you are not able to execute it, when you are not able to do things in time. तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो प्रेशर बिल्ड करता है। अंजलि 10 घंटे पढ़ना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज रहती है। 10 घंटे के बाद ना मस्त हाँ नींद आती है। सर, जिस दिन पढ़ा हो ना, उस दिन बेड पे जब रात को सोने जाओगे ना, पता चलता है कि आज तुमने पढ़ाई की है भाई।
बिल्कुल। वरना तो नहीं पता चलता है सर। और वो सेटिस्फेक्शन भी आता है, लेकिन वो अब इसमें ना एक और रोल आता है, इसमें रोल आता है कि एक डायरेक्शन हो जी। मेहनत करने को ना। यहाँ पे भी जैसे अभी जब हम बात कर रहे हैं अराउंड 80 लोग हैं, आउट ऑफ 80 15-20 ऐसे होंगे कि हमें डायरेक्शन दे दो, हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने को तैयार हैं। और वो जी। डायरेक्शन कई बार मिल नहीं पाती है, हम्म। और डायरेक्शन लेस जब हम रहते हैं वो भी एक फ्रस्ट्रेशन देता है। जी। और सक्सेसिव अटेम्प्ट के साथ में नई नई कहानियां सामने आती हैं। किसी साल आता है एक नई चीज कि फ्लो चार्ट बना के आओगे नंबर पा हम्म। जाओगे, और हम्म। अगले ही साल नंबर कट जाते हैं जो भी बना के आता है। तो आई जी, थिंक डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन मैटर्स। ये चीज मैटर करती है सर। सर लेकिन उसके साथ साथ एक ये चीज भी, सक्सेसिव अटेम्प्ट्स में जो प्री में फेल होते हैं ना, उनको अपना पैटर्न पकड़ने की बहुत जरूरत है कि आप किस पैटर्न में हो, उस पैटर्न को पकड़ोगे, नहीं तो ब्रेक नहीं कर पाओगे, और वो पैटर्न ब्रेक नहीं होगा तो फेलियर का चेन जो है वो ब्रेक नहीं होगा। और अच्छा, सर इसमें आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट वन लाइन कि शैली ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला कि सक्सेसिव अगर प्रीलिम्स फेलियर है ना, तो वो फेलियर को पकड़ना बहुत जरूरी है। कई बार होता क्या है ना कि लोग स्केप गोट ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कुछ लोग हैं, उन्हें पता है कि वो टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दे आर कमिटिंग दैट मिस्टेक, बट वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी सेम मिस्टेक करेंगे, नहीं वो जी। करेंगे सॉल्व। कुछ लोग एक्सेसिव टेस्ट पेपर कर रहे हैं सॉल्व, 100 कर लिए 125 कर लिए तब भी फेलियर है, उसकी शायद जरूरत भी नहीं है। तो आई थिंक लोग अपनी मिस्टेक को दोबारा से दोबारा ना दोहरा रहे हैं, इसकी वजह से भी वो लोग सफर कर रहे हैं। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? यस सर, इसमें बहुत छोटी सी भी मिस्टेक हो चेंज माय चलिए, योर आंसर, वॉइस, आई चलिए, चेंज योर माय। वॉइस वाज गॉन। अभी है सर? योर वॉइस वाज गॉन, अभी है, अभी है। जी। जैसे ही तुमने जैसे बोलना चालू आप किया तो आवाज ही चली गई थी। जी। एक तो ओके। पहले क्या होता है कि इसमें जैसे आप कभी-कभी क्या होता है कि आप कोई ऑप्शन चूज़ करते हो, कोई क्वेश्चन देके कि इसका ये आंसर होगा, लेकिन जब ओएमआर में फिल करना चाहते हो तो चेंज कर देते हो अपना ऑप्शन। तो ये भी एक छोटी-सी चीज़ है जो आप अपनी पकड़ सकते हो। मैंने पहले 2 अटेम्प्ट्स में ये गड़बड़ की है, जो मैंने अपने पहले 3 अटेम्प्ट्स में नहीं की है। तो पैटर्न बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। सर यहाँ पे मैं सिर्फ एक एक छोटा-सा क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करना चाहूँगी कि यहाँ पे कितने लोगों श्योर। ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए हैं, और अच्छे से किए हैं, फॉर्मेलिटी नहीं। अच्छे से किए हैं, फॉर्मेलिटी नहीं किए हैं। मतलब कितने अच्छे से, मैं लिटरली ये जानना चाहूंगी किसी ने हिस्ट्री के जो पेपर्स हैं एंशिएंट मेडिवल के, बिल्कुल 1995 से लेके आज तक कभी किए हैं? एनीवन? 1995 क्वेश्चन दोबारा सुन लो। देखा था नहीं, किए हैं। क्वेश्चन करने की बात मैं आपको बताऊं क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। जैसे 2019 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि फ्लड फ्लड का जो है वो किसमें लिखा गया था, कौन सी उस पे प्लेट पे था, सोहगढ़ प्लेट पे था शायद, कुछ ऐसा कुछ सोहगढ़ उसमें एक हम्म। ऑप्शन था। और ये वाला हम्म। क्वेश्चन जो है कब से रिपीटेड था सर? 1998 में एक क्वेश्चन था, उसके ऑप्शन में था ये। हम्म। मुझे ये चीज पता थी। तो हम्म। जहांगीर का जो पोर्ट्रेट वाला था क्वेश्चन, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक 1990s के किसी क्वेश्चन से इनडायरेक्टली रिलेटेड था। बिल्कुल। और सर अब हम्म। की बार के पेपर में मैं 3 क्वेश्चन ऐसे दिखा सकती हूँ जो प्रीवियस ईयर से आए हैं। मैंने पेपर नहीं हम्म। दिया आपकी, आई डिडंट सिट फॉर द एग्जाम दिस टाइम, बट लिटरली कौन से वाला क्वेश्चन था, एक शायद सर फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ है, 2015 का एग्जैक्ट क्वेश्चन। बिल्कुल। और इकोनॉमी में एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है सर। और हिस्ट्री में तो आप हम्म। इतना देख सकते हो ना, मॉडर्न हिस्ट्री में तो लिटरली मैं बता रही हूँ कि अगर आप 2015 से क्वेश्चन उठाओगे ना मॉडर्न हिस्ट्री के और आप देखोगे, हम्म। तो बीच में से हर बार एक क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री में। इतना एनालिसिस है किसी के पास जिसने प्रीवियस ईयर किया है? यार, प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर क्वेश्चन करने का
सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कोई एक बुकलेट ले आए उसमें क्वेश्चन पढ़ लिए, क्योंकि याद होते नहीं है। 1995 इज वे बैक। शैली इज सेइंग अबाउट एनालिसिस, अबाउट सिटिंग विद द यस प्रीवियस ईयर, कि वो तुम्हारे दिमाग में बैठ ही जाए कि ये क्वेश्चन था कोई। यस, जैसे मैं एक चीज बताऊं, जो मैं ये चीज बोल रही हूँ कि 1940 से लेके 1947 के बीच में हमेशा एक क्वेश्चन आता है सर, उस एरिया से हमेशा एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। अब की बार का क्वेश्चन मैं बता सकती हूँ, आईएनए ट्रायल्स का उसी एरिया से था। बिल्कुल। अगर किसी को इतना एनालिसिस है प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो मैं उसको मानूंगी कि उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सच। यार देखो, पेपर देने के बाद में ना अभी तुमको पता चल गया कौन से ईयर का है, व्हाट शी इज सेइंग, कि पेपर से पहले किया था कि नहीं। हाँ, कि कैसे करना है चीजों को, कैसे वो मोल्ड वाला था। उसमें एक ऑप्शन में था, दिस इज द ओनली 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 टेम्पल विद डोम और सर्कुलर डोम, कुछ ऐसे करके था। अगर उसमें से आप ओनली को हटाओगे तो योर आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक आप कब आप इस ट्रिक पे बैक कर सकोगे? ये ट्रिक सिर्फ सब लोगों को पता होगी, पता है सबको पता बिल्कुल। होगी कि ये कोई ट्रिक है। लेकिन आप बताइए, आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली इस ट्रिक को कब अप्लाई कर पाओगे, जब ये ट्रिक आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में खुद पर्सनली लगा के देखी। आप उसी चीज से वो कॉन्फिडेंस ले पाओगे कि नहीं, ये चीज अब की बार भी वर्क करेगी। मैं एनालिसिस का पोर्शन बताती हूँ। अब की बार का पेपर मैंने दिया नहीं, लेकिन मैंने पेपर सॉल्व किया है। अब की बार का पेपर बोल रहे हैं कि बहुत टफ है, आउट ऑफ द लाइन है, लेकिन मैं बोलूँ तो 2017 से लेके 2021 तक अब की बार का भी पेपर हमेशा इट्स देयर इज नो पैटर्न टू दिस मैडनेस। ये वाला कॉन्सेप्ट है यूपीएससी के प्री पेपर में, बस देर इज नो पैटर्न टू दिस पैटर्न, ये चीज है। और उसके लिए उसमें भी मैं आपको बताती हूँ, अब की बार के पेपर में 41 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपकी डायरेक्ट स्टैटिक बुक की नॉलेज की एप्लीकेशन पे थे। उसमें जो हेविली था वो पोर्शन था पॉलिटी और इकोनॉमी का। अब की बार सर वो प्री से आउट हुआ है जिसने पॉलिटी और इकोनॉमी के इजी क्वेश्चंस गलत किए हैं। बिल्कुल। उसके अलावा कोई आउट नहीं हो सकता इस पेपर में। इस पेपर में वो बंदा आउट हुआ होगा जिसने कि वो नहीं पता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 32, आर्टिकल 28 वाले में से कौन सा ऑप्शन सही था उस क्वेश्चन का। सेकंड स्टेट की डेफिनेशन वाला जिसने गड़बड़ किया है सर। जिसके बाद फिर उसने वो कमिटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाला जो एक क्वेश्चन था सर। जिन लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस गलत किए हैं जहां पे वो अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पा रहे ना यूपीएससी के थिंकिंग प्रोसेस के साथ, वो आउट होंगे अब की बार। 40 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो आपकी नॉर्मल बुक्स की नॉलेज के एप्लीकेशन से आप सॉल्व कर पा रहे थे। उसके बाद 20-22 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व कर पा रहे थे। तो लिटरली 60 टू 65 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप पेपर में डूएबल थे। मैं पेपर मानती हूँ टफ था, बट पेपर स्टिल डूएबल था। शायद ये एक चीज लग रही होगी कुछ लोगों की, मैंने अब की बार नहीं दिया तो मैं बाहर से बैठ के कुछ भी बोल सकती हूँ। शायद हो सकता है, मैं मानती हूँ कि हर किसी की बायस है, आप ये चीज भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल मैं एक अपनी तरफ से जो मैंने एनालिसिस किया है पेपर का, मैं वो बता रही हूँ। अब ये 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब लोग ठीक करके आएंगे और डुएबल क्वेश्चन है, तो उसमें आप इजी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे जो बाकी 25 क्वेश्चन रह गए ना, उस पर हम मेहनत करेंगे और उसमें मार्क्स लेके आएंगे, लेकिन वहां पे सक्सेस रेशियो सबका ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। वहां पे वेरी गुड, गलत बहुत होना अच्छा। सही होने की प्रोबेबिलिटी सबकी सेम हो जाएगी। हम अपनी एनर्जी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस को देते हैं जो कि आपको लगता है डिफिकल्ट है। हम वहां पे पेपर में जंप करते हैं ऐसे क्वेश्चन को जो कि इजी रहता है, जिसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन रहता है। अब स्टेट का क्वेश्चन जो गलत करके आया वो दैट पर्सन इज बाउंड टू बी एट द बॉर्डर लाइन इन प्रीलिम्स। वो हमेशा फिर लक पे ही रिलाई करेगा सर। तो आप उन सब चीजों पे ध्यान दीजिए जो आप अपनी कर सकते हैं ऐसे ही। आप इजी क्वेश्चन को गलत करके कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आप प्री पास हो जाएंगे। लिटरली मैं बता रही हूँ, आप कभी कभी बहुत ब्लंटली ये चीज बोल रही हूँ कि इजी क्वेश्चंस गलत किए तो उससे बड़ा ब्लंडर कोई नहीं है लाइफ में। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर डिफिकल्ट क्वेश्चन को सही करके आते हो तो वो आपका एक एडवांटेज है। अच्छा चलिए, इसमें ना एक और बात होती है कि जैसे सर तुम हो, मैं हूँ, एक हम मिनट लोग, दीजिए ये मुझे। प्लीज प्लीज जी प्लीज जी प्लीज।
Just after 5 or 7 minutes we'll take. हाँ शैली, जी जी तो सर, एक सॉरी। बहुत अच्छी बात कही, कोई बात नहीं। लेकिन शैली देखो, ऐसा भी है ना कि तुम और मैं एग्जाम हॉल के बाहर है, हाँ वो जी। एग्जाम हॉल का जो प्रेशर है ना, उस पे कईयों बार ऐसा होता है कि हमारे प्रीवियस जो फेलियर हैं वो हावी होते हैं। एंड एज यू हैव से कि दिस ईयर यू वर लाइक कि नहीं, मेरा कोई प्रीवियस जो भी फेलियर है वो मैं हावी होने दूंगी नहीं। जी अच्छा शैली, प्रीलिम्स में नंबर कैसे आए और सी सेट में कैसे आए इस बार? सर, अब की बार प्रीलिम्स में मेरा है 100 स्कोर। ओके। और सर मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा 110 112 के आसपास वो आएगा, कम हो लेकिन अब गए। यार सबको हाँ पता है कि 10-15 नंबर सबके कम हुए हैं सर। हाँ हाँ। तो 100 मेरा स्कोर था और मेरा सी सैट में 90 था, एग्जैक्ट चलो सी 90 सेट बढ़ गया। समथिंग हुआ। जी ठीक है। हाँ, तो शैली लेट्स टेक अप सम ऑफ द क्वेश्चंस, है ना? जी जी। Those who wants to ask the question, unmute your audio and ask your doubt and ask your question. हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, मैम 4 अटेम्प्ट्स प्रीलिम्स फेल कर रहा हूँ मैम। जी Once because of CSAT and the other times I've missed the cutoff by almost 5 to 6 marks मैम। And यस 2021 का जो प्रीलिम्स था मैम, I found the paper very difficult मैम। मतलब जी। I know मैम, मैंने आपकी बात सुनी कि आप कहती हैं कि the जो सवाल थे they were मतलब doable, but मैम, but still मैम, what should be the sure shot technique to clear prelims मैम? मैम प्रीलिम्स is my main hurdle मैम। यस मेंस यस की आई। तैयारी मैं कर लेता हूँ मैम, प्रीलिम्स मुझसे हो ही नहीं पा रहा है मैम, पता नहीं क्यों। प्लीज उस पर मैं गाइड कर दीजिए मैम। हाँ जी, जैसे आप बोल रहे हो कि आप 4 या 5 नंबर से ही मिस करते हो कट ऑफ, तो आप ज्यादा दूर नहीं हो, आपकी नॉलेज में गैप मुझे नहीं लगता है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगी कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो? आप वन गो में पेपर अटेम्प्ट करते हो या 2 या 3 आइट्रेशन में पेपर अटेम्प्ट करते हो? मैम मैं पेपर 2 से 3 इटरेशंस में मतलब करता हूँ मैम। पहले फर्स्ट इटरेशन में मैं क्लोज टू अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस करता हूँ, जो जी कि मतलब हो जाते हैं मुझसे, मतलब सारे टेक्निक्स वगैरह सब लगा करके मैम। जी देन दो सेकंड एंड थर्ड जो ये होता है मैम इटरेशन, सेकंड इटरेशन में मैं अपने लॉजिक्स यूज करता हूँ एंड मतलब वही सब मैम। तो जी। उसमें मैम मेजोरिटी ऑफ देम मेरे सही होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम मतलब दे गो रॉन्ग ऑल्सो मैम एट टाइम्स। मैं आपके इसमें सिर्फ एक चीज और पूछना चाहूंगी कि अब की बार आपका पॉलिटी और इकोनॉमी वाले पोर्शन में आपने इजी क्वेश्चन तो गलत नहीं किए है ना? नहीं मैम, पॉलिटी और इकोनॉमी मेरा सारा सही था इस बार। तो आपको आपके खुद के एनालिसिस से क्या लगता है कि आपका कहाँ पे दिक्कत हुआ आपकी बार के पेपर में? मैम मुझे लगता है कि मैंने एंशियंट एंड मिडीवल को ज्यादा मतलब उतना तूल नहीं दिया, वेयर एज आई शुड हैव रिवाइज्ड मोर एंशियंट एंड मिडीवल। जो बेसिक क्वेश्चंस थे एंशियंट मिडीवल के, लाइक इस बार वो आया था, एलोरा जी टेम्पल इज ऑन विच जी रिवर, वो जी। मेरा गलत हो गया मैम। पता है वो वाला एक बेसिक क्वेश्चन नहीं था एंशियंट का, वो फिर भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक फिर यहाँ पे यही चीज एक बोलना चाहूंगी, मुझे नहीं लगता कि आपकी नॉलेज में या किसी चीज में गैप है। बस आप प्रीवियस फेलियर को मत लेके जाइए एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में बैठ के डरिए मत बस कि आप क्योंकि उस 2 घंटे में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जो आपकी लाइफ को ऊपर नीचे से पलट दे। तो आप ये चीज, और उसके अलावा मैं एक चीज बोलूंगी, प्रीवियस ईयर्स बहुत अच्छे से करिए आप। प्रीवियस ईयर मतलब लिटरली मैं बता रही हूँ कि जितने अच्छे से कर सकते हो ना उतने अच्छे से कीजिए आप। कि आप, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि आपके इजी क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं, उसके बाद फिर आपका पॉलिटी और इकोनॉमी वाला पोर्शन सब सही है अब की बार भी, तो फिर बस जैसे 2 या 3 आइट्रेशंस में करते हो पेपर को, उस मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई चीज बस वो दिन दिन का फर्क रह जाता है उसके बाद। और फिर मैं आपसे ये चीज कि आप प्रीवियस ईयर्स किए हैं आपने अच्छे से? जी मैम, बट नॉट फ्रॉम 1995 मैम, मैंने नहीं, 2010 ऑनवर्ड्स किए मैम मैंने। जैसे 1995 का सिर्फ रेफरेंस हिस्ट्री के लिए था, हिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए, पॉलिटी के लिए, आप ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए आप 2013 से शुरू कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा और कोई चीज है। जैसे आप बोल रहे हो कि क्योंकि उसके अलावा मैंने कोई गलती ऐसी की नहीं कि जिसके बाद मैं और इंसाइट दे पाऊं, क्योंकि यही चीजें हैं जो बेसिक मुझे लगता है जिसको करने से आप, क्योंकि आप कट ऑफ से ज्यादा दूर नहीं हो, आप 4 या 5 नंबर, वही मतलब 1 या 2 यार क्वेश्चंस का। थोड़ा सा ना, यार शैली पता है इसमें ना एक मेरा भी इनपुट है कि कई बार जी होता क्या है ना कि जब जब बंदा 2 3 4 नंबर से फेल होता है ना,
तो वो हमेशा कोशिश करता है कि बस 4 या 5 नंबर और आ जाएं और मेरा प्रीलिम्स निकल जाए। जी और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि कट ऑफ से मेरे 15-20 नंबर ज्यादा आए, और कट ऑफ हाँ से 15-20 ज्यादा आने के लिए एफर्ट मारना पड़ेगा। और वो जी एफर्ट मारने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हार्डवर्क को बढ़ाना पड़ेगा। उसकी जी जगह पे लोग करते क्या है कि वही पुरानी चीज करते रहते हैं कि शायद इस बार मैंने तो एंशिएंट भी हाँ पढ़ लिया समझ है, गए। तो तो नंबर आ जाने चाहिए, बट वो आते नहीं। सर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि आपने अटेम्प्ट कितने पे क्वेश्चंस किए थे अब की बार वाले पेपर में? मैम अब की बार में मैम मैंने 79 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे मैम। 79। अब आपका सेफेस्ट कितना अटेम्प्ट रहता है, आप जो उसमें टेस्ट सीरीज में एनालाइज कर पाए? मैम इस बार जो मैंने टेस्ट सीरीज दी थी मैम, हाँ क्लोज टू जी आई गेव अराउंड 15 फुल लेंथ टेस्ट जी। एंड इन ईच ऑफ देम आई हैव स्कोर्ड 120 प्लस मैम, एंड माय सेफ अटेम्प्ट्स आर अराउंड 80 to 85 क्वेश्चंस ओनली मैम। वही मैं तो मतलब वही, इतना शॉक में था मैम कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मॉक्स में तो आ रहे हैं मेरे मैम 160 तक गए मैम स्कोर मॉक्स में। आई एम तो टॉकिंग वही अबाउट द चीज मैं आप इंडिविजुअल बोल रही सब्जेक्ट्स हूँ मैम। कि जैसे मुझे पता है कि मैं अगर 80 से नीचे अटेम्प्ट करूंगी ना, मैं आउट हो जाऊंगी प्री से। जी जी और मैम। मैं 85 से भी अगर ऊपर अटेम्प्ट कर, मतलब 88 से भी अगर ऊपर अटेम्प्ट करूंगी तो भी मैं आउट हो जाऊंगी प्री से। तो मेरा सेफेस्ट अटेम्प्ट 85 to 88 रहता है। तो शैली, ये कैन आई कम बताइए इन what- हियर? जी जी यार देखो, मॉक के मार्क्स से यूपीएससी निकलता नहीं है, राइट सर। ठीक है। 42 नंबर आए थे प्रीलिम्स के 4 दिन पहले, एक मॉक में प्रीलिम्स निकल गया। एंड आई नो मेनी हु आर स्कोरिंग मोर देन 120, 130, 140 marks in the mock, and despite of that they are not able to clear the prelims. Reason being that you have understood the mindset of the mock, those who are making the mock, but you don't have to understand the mindset of those who are making the mock. You have to understand the mindset of the UPSC. In UPSC generally we start thinking too much, because in the mock, by thinking too much you are getting very good score, but in UPSC sometimes you don't have to think too much. So there is no correlation between mock marks and UPSC. First thing. Second thing, previous year question, by doing that you will understand the mindset of the examiner of UPSC, so that you will stop doing overthinking. There is a thing, not like you have to balance. You should not overthink and you should not be casual. Even the casual approach kills. तो ये दोनों बहुत डिफरेंट है। यस शरी, आई थिंक यू वांटेड टू मेक सम पॉइंट, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, बस वही चीज, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि आप उसका हैक पकड़ पाए हो, क्योंकि सर मेरे एक्सपीरियंस से जितना मुझे था सर, मैं अब उसमें कोई भी रैंडम चीज ऐड नहीं करना चाहूंगी जस्ट फॉर द सेम थिंग्स। तो जो बेसिक आउटलाइन मैंने बताई सर, वो हमेशा वही रहेगी जो अभी तक है। अब केस टू केस बेसिस पे शायद आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे स्टूडेंट के साथ बैठ के। मेरी जितनी लिमिटेड नॉलेज थी सर, मेरे पास सिर्फ इतना ही इनपुट है इसके लिए। सर देन सर मैम देन व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर मॉक्स मैम? बिकॉज एज अ मतलब मैं मानता हूँ सर कि मॉक्स के मार्क्स एंड यूपीएससी के मार्क्स, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, बट मॉक्स को जी यू कैन नॉट इग्नोर देम कंप्लीटली एज वेल मैम। तो उसके यू लिए क्या कैन यार नॉट। अप्रोच मॉक हो के मैम? 3 रूल हैं। मॉक के 3 रूल हैं। पहला ना, लक्ष्मीकांत को 100 बार पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन उसके बाद में भी ना जब मॉक सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन गलत करोगे तो सो द फर्स्ट रूल ऑफ द मॉक इज टू फिल द नॉलेज गैप। whatever you study there will always be knowledge gap. So first, mock do the mock is like fulfilling the knowledge gap. Second point is, in prelims you need to have some more knowledge. Suppose you are appearing for the mains and there is a question on 1857. You have some knowledge, something you can write, but in prelims you have to be 100% accurate. So horizon of knowledge matters. So in that horizon of knowledge, by solving mock you get so many questions, and by having those questions you get to know so many points, so your knowledge increases. And third, you try to solve the mock as if you are solving the UPSC prelims, so that you can analyze that whether you are making mistake in the simple questions or not, whether there is a lack of knowledge still exist or not, whatever subject you have finished, are you able to solve the test or not. So these are the points which you should keep in the mind in the mock. But generally candidate treat mock as if they are
like they treat coaching mocks as if they are solving the UPSC prelims paper. That is not true, and it cannot be true. No coaching can make a paper like UPSC. As simple as that. So mock means fulfilling the knowledge gap, increasing your knowledge, and third, analyzing your mock. Even if you solve 20-25 mock, but just by sitting with those mock, if you are able to analyze that why I made mistake in those 7 simple questions where I should have corrected those questions, what kind of mindset you were having, did you change your option or not? So people don't analyze, they directly check their marks and they are happy. Suppose someone is getting 70 marks and they are like कि अपना तो अब होना नहीं है prelims, and someone is getting 130 marks, they are like prelims तो अब निकल जाएगा. Both are wrong. You have to sit with your mocks. You might spend 1 hour 30 minutes to solve one mock, but unless you sit 2 or 3 hours with your one single mock, you will not get the best out of your mock. That is the main role of the mock. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Guys, Thank you, next ma'am. okay, okay. Ma'am, I have a question. Next, yes. Yes. Ma'am, I have a question. Wait. Like how do you Yes. used to how do Yeah, you used to analyze the Chance. PYQs, ma'am? And suppose if you are analyzing through options also, have you been making any notes out of it? And if you are making notes out of it, were they short, like are they in pointers form or something like that? And secondly, about CSAT also, again, I can relate with your CSAT thing that you have failed CSAT, because even I come from the engineering background and I took it for granted and it has costed me this time too. And I wanted to ask one thing that out of, like, since you had already failed, like what was your approach for the next time, since it would have added some pressure out of it? Like how did you deal this time differently? So that's Yes. 2 questions I had. Yeah. So first of all, coming to the question of how do you analyze the previous year question papers? First, you need to identify the areas which UPSC is focusing most. Like in modern history, I said that there will be a question from 1940 to 1947 always. In polity, there will always be a question from the constitutional form, the form of government we have around that. Like sometimes they'll ask responsible government, sometimes they'll ask government which is accountable to the lower house or something like that. And especially from the parliament chapter of Lakshmikant. And apart from that, I used to make notes out of it, especially for the areas where I'm not comfortable, where I'm not confident. Like my biggest area of concern was art and culture. So for art and culture, it was introduced in 2013. Can't hear you, ma'am. Go into Delhi, the your curriculum. voice is gone. Yes, For sir. Now, last one minute, your voice is gone. sir, Now abhi it is hai? fine. Could you Yes. please repeat? Yeah. So I used to make notes out of it. I used to go through the like for the areas where I'm not comfortable, like I said, for art and culture. तो वहां पे मैं क्या करती थी, मैं वहां पे अपना proper, I used to go through every option and I used to write down some content about that option and used to analyze that. And apart from that, what I used to do, that there are some tricks which UPSC plays, like was there. If you read the options very carefully, now you will find there is some inconsistency. That there is some inconsistency in the options themselves. So you need to analyze papers from this direction, from this area where UPSC focuses the more, or kaise karke you can reach to the answer if you can develop that thinking habit. And then coming to the CSAT portion, I would say what I did was, I did the CSAT paper starting from 2013 to 2020, complete CSAT papers. And मैंने बाहर से कुछ नहीं किया था CSAT के लिए, मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई CSAT का मॉडल पेपर कुछ नहीं लगाया था, बिकॉज
लिटरली दे कैन नॉट मैच यूपीएससी लेवल इन सीसैट। यूपीएससी लेवल कितना है नहीं पता है, बट वहां पे ये चीज होती है कि थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि वो किस एरिया पे फोकस करते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लगाए थे, आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट इन सीसैट। मैम मेरा क्वेश्चन था, जब आपने सीसैट के लिए बताया कि आपने हाँ प्रीवियस हाँ ईयर्स क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए थे, राइट? तो मैम आपने कौन से ईयर से लेकर के जी, कौन से ईयर तक ज्यादा एम्फोसाइज किया था उस पर? मैंने 2013 से लेके एंड तक किया था, लेकिन यार जो 19 तक के 3 पेपर्स थे मैंने उनको बहुत। मैम आपकी वॉइस, मैम काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जा रही हैं, आपकी वॉइस चली जाती है बीच में। आप मुझे 5 मिनट दोगे क्या एक बार? यस यस श्योर मैम श्योर। या यस शैली। सीसैट के लिए मैंने 2013 से लेके 2020 तक का पूरा किया था, और उसमें मैंने ज्यादा एम्फसाइज किया था 2017, 18 और 19 का जो पेपर था, क्योंकि वहीं से सीसैट जो है दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीबॉडीज लाइक प्री फेलियर और सक्सेस, आई वुड से। तो आप ज्यादा फोकस कीजिए 2017 के बाद वाले पे, और स्पेशली मैं बोलूंगी मैथ्स, अगर आपका पोर्शन ठीक है ना, आप मैथ्स अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट आप थोड़ा सा उसको कंप्रीहेंशन वाले पार्ट को देखिए कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है और कैसे आप ऑप्शन को चेंज करके वो दिक्कत कर रहा है, मतलब वहां पे थोड़ा उस चीज को एनालाइज कीजिए, क्योंकि बिना कॉम्प्रीहेंशन किए मुझे नहीं लगता है कि होगा। कॉम्प्रीहेंशन में कम से कम नहीं तो आपको 10-12 क्वेश्चंस तो करके आने पड़ेंगे। ओके मैम। और मैम ये assumption बेस्ड वाले क्वेश्चन बार बार रॉन्ग हो जाते हैं, कोई तरीका है इनको समझने का आरसी में? आरसी में इसका तरीका मतलब लिटरली वही है कि आप यूपीएससी की साथ में लेके बैठिए, और उसके बाद आप देखिए कि अगर वो वाला ऑप्शन है तो वो कैसे उस थिंकिंग प्रोसेस से उस ऑप्शन पे आया जा रहा है, क्योंकि ये चीजें हैं, मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा लक का फैक्टर है। यूपीएससी ने जो दे दिया वही होगा की, बट स्टिल यहाँ पे बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो एम्बिग्युइटी वाला फैक्टर है। तो इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स है उनको देखिए, और उनकी की के अकॉर्डिंग आप देखिए कि यूपीएससी कौन से उस एरिया को फोकस करके वो एजम्पशन वाले पार्ट पे पहुंच रहा है लिटरली। तो वही यार एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। सीसैट का ना एक और इशू जो है ना वो ये है कि जब से ये क्वालिफाइंग हुआ है ना, कैंडिडेट्स ने मेहनत करना बंद कर दिया है। एंड स्पेशली अगर मान लो इंजीनियरिंग वाला है तो वो एक अकड़ में जी रहा है कि अपना तो निकल ही जाएगा, अपन ने तो इंजीनियरिंग कर रखी है, और वो फेल होते हैं। आईआईटी बॉम्बे का मेरा फ्रेंड फेल हुआ है, ठीक है, बहुत लोग हुए हैं फेल, शैली हुई है फेल। तो वो ना हमें उसको नेग्लेक्ट करना नहीं है। द फर्स्ट थिंग इन सीसैट इज डू नॉट नेग्लेक्ट सीसैट, ठीक है। फिर सर सेकंड थिंग जो है ना वो ये है कि जो प्रैक्टिस करनी है आपको, करना ये है कि ये क्वालिफाइंग है, आपके नंबर जुड़ने वाले नहीं है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द एरियाज वेयर यू आर स्ट्रॉन्ग। इट कुड बी क्वांट, इट कुड बी एलआर, इट कुड बी आरसी। You have to find out कि okay, in these areas I'm strong, and if you practice those areas then you will be able to clear the CSAT. Another mistake which candidate make, attempting 30 question 32 question कि 32 में से 30 तो सही होना ही है। यार यूपीएससी के आंसर की बहुत अलग रहती है। दिस ईयर वन ऑफ आवर टॉपर, that topper cleared CSAT by 2 marks, just by 2 marks. एंड दैट टॉपर वाज लाइक कि बताओ यार, अगर एक क्वेश्चन भी गलत होता, अभी तो रैंक लेके बैठे हैं, फिर तो प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। तो नेग्लेक्ट नहीं करना है। समझ गया सर, अपना कंफर्टेबल जोन पहले डिसाइड करो, फिर उस पे खेलना है। ओके sir बिल्कुल। sir can थैंक I यू मैम, add something थैंक यू for सर। CSAT, sir? Actually this year I'm नेक्स्ट scoring, क्वेश्चन या sir actually this year यस I'm scoring according to my calculations more than 100, sir, and मेरे most of the RCs सही हैं sir. So can I add something? यस 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 सर, मैंने इस बार अप्रोच क्या करी कि पैराग्राफ को पहले तो एक बार पढ़ा, तो एक जो बेसिक आइडिया होता है कि पैराग्राफ बोलना क्या चाहता है वो समझ आ जाता है, एंड द लेवल ऑफ इंग्लिश इट इज लिटिल हायर,
नॉट द नॉर्मल इंग्लिश जो हम यूजुअली पढ़ते हैं। तो मैंने उस पैराग्राफ को एक बार इंग्लिश में पढ़ा, देन एक बार हिंदी में भी पढ़ा सर। तब जाकर के वो पैराग्राफ एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है वो समझ आ गया, एंड देन आई कुड इजीली एलिमिनेट द ऑप्शन सर। डेफिनेटली ये भी एक तो वो अप्रोच है, लेकिन थोड़ा सा ना टाइम का भी क्रंच रहता है ना। तो अगर मान लो कि कोई इस अप्रोच में लग गया और फिर उसका टाइम का क्रंच रहा, तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट यस दिस कुड बी ए अप्रोच। राइट सर, बट वन क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स सर, सो द बिल्कुल बेनिफिट भी बिल्कुल, उतना है सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। सर थैंक यू सर। Hi, ma'am. वेलकम। Hello, ma'am. यस संकेत। Yes. I would like to ask कि अभी जैसे जून में एग्जाम है, तो अगर मैम आप एक अपना स्ट्रेटेजी बनाते तो सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करते फॉर अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स और अकॉर्डिंग टू मेंस, मैम दोनों आप अगर बताते तो बहुत बढ़िया रहेगा। शैली यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर लाइन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली, ठीक है? जी Those who consistently fail in prelims, they stop preparing for the mains. जी जी And I am sure कि तुमने अपनी मेंस की तैयारी बंद नहीं करी थी। अगर बंद नहीं कर सर, देते तो मेंस निकलता नहीं। मेंस नहीं तो निकलता ये सर। हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो कैन यू प्लीज नाउ यस सर। इलैबोरेट? तो सर उसके लिए मैं सिर्फ थोड़ा ये चीज पर्सपेक्टिव में रखना चाहूंगी कि जो प्री का एग्जाम है वो 5 जून को है, तो आपको कम से कम नहीं तो 100 दिन देना पड़ेगा प्री को अब से। तो आप लगा के चलिए कि आपको मिड फेब से तो प्री ही करना है, ठीक है? तो अभी आपके पास कितने दिन बचे? आपके पास बचे ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी, तो ऑलमोस्ट 3 महीने, मतलब ऑलमोस्ट कितने दिन, ऑलमोस्ट 60-70 दिन 80 दिन के आसपास आप लगा लीजिए जो आपको बचे कि जिसमें आप मेंस कर सकते हो। तो उसमें मैं आपको बोलूंगी कि आप टारगेटेड अप्रोच लेके रखिए। आप इस 70 दिन में सब एक साथ नहीं कर सकते हो। आप इसमें थोड़ा टारगेटेड अप्रोच रख के आपका अपना ऑप्शनल और एसे और एथिक्स वाला पोर्शन फिनिश कीजिए पहले। मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ आपको, अब की बार का कट ऑफ शायद मेंस का 760 या 767 के आसपास था। आप मिनिमम, आप अगर अच्छे से अपना ऑप्शनल करके आते हो तो 250 नंबर लेके आ सकते हो उसमें। उसके बाद फिर अगर आप ऐसे एवरेज ऐसे लिख के आते हो तो 135 मार्क्स उसमें आते हैं और एथिक्स में भी 105 के आसपास आ जाते हैं। तो टोटल मिला के आपका एथिक्स, ऑप्शनल और एसे से टोटल कितना स्कोर बनता है? ऑलमोस्ट 500 मार्क्स। तो 500 उसके बाद फिर कितना बचा? 760 में से 500 अगर आप हटाओगे तो 260 बचा, जो कि 3 पेपर से में से आपको लेके आना है। तो और वो तीनों पेपर ऐसे हैं कि जो कि बहुत ओवर द पीरियड आप बिल्ड करोगे। तो अभी मैं आपको बोलूंगी कि सही स्ट्रैटेजी ये रहेगी, आप अपना ऑप्शनल, एसे और एथिक्स पे फोकस कीजिए अभी, और उसके बाद फिर प्री पे, मतलब सिंगल हैंडेडली प्री पे फोकस कीजिए, क्योंकि प्री जो है वो बहुत बहुत हर्डल वाला गेम हो गया है। अब बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। तो आप ऐसे अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। थैंक यू मैम ये बताने के लिए। समझ आया कि मिनिमम एक मिनिमम नंबर लाने के लिए अप्रोच रखना है मेंस में। ऑल राइट। यस मैं यस ये यस। और पूछ रहा हूँ कि जैसे आप फेब में, मिड फेब से आपने बताया कि हम प्री के लिए डेडिकेटेडली हाँ पढ़ेंगे, तो हाँ जो लास्ट के मंथ्स होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग अगर प्री जून 5 को है तो मई स्टार्टिंग से और फिर इतना सारा कंटेंट और ये सब आने लगता है, तो जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं वो मैम कहीं ना कहीं डेविएट हो जाती है। ओके। तो तो मैम लास्ट मंथ को लेके क्या पर्टिकुलर अप्रोच रख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, लास्ट सब्जेक्ट कैसे डिवाइड करें? शैली मैं यहाँ लास्ट पे एक शैली यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। जी जी कंटेंट आता नहीं है, हम लाना चालू कर देते हैं ओआरएन हाँ से, ठीक है? हाँ। कंटेंट आता नहीं जी है। यस जी शैली सर। प्लीज कंटिन्यू। कुछ नहीं, बस पता है वही चीज मैंने पकड़ी सर। यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज कीजिए, इन द लास्ट मंथ यू विल नॉट ऐड एनी। हेलो शैली तेरे फोन में भी आवाज चली गई है, काइंडली चेक योर ऑडियो। thing else to your preparation. If at all you want to do something, you can attempt the full का वो करंट अफेयर्स आएगा। कोई चीज इतनी मैटर नहीं करती है, पता है उस लास्ट मंथ में क्या करते हो, लेकिन मैटर क्या करेगा कि आप अपने बेसिक सोर्सेज को कितने अच्छे से रिवाइज करके जाते हो। रिवीजन, लास्ट मंथ में सिर्फ रिवीजन और कुछ नहीं।
Okay. Thank you very much, ma'am. Thank you. जी सर हेलो मैम। Yes, Shelly. सर कल कंटिन्यू करेगा सर 1-2 दिन बाद या फिर हाँ थोड़ा लेट हो गया, हाँ थोड़ा लेट हो गया। हाँ जी Guys, okay, Shelly, just एक last question ले लेते हैं। जी Somesh, जी you want to ask something? Please ask, and then we'll continue again. जी सर Somesh? हेलो। Yes, जी Somesh. बोलिए हाँ हाँ जी, एक्चुअली मैम वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे थे, यस बट यस जैसे एक मैं आपसे मतलब बहुत मतलब जैसे कि पता नहीं इसका हो चुका है कि नहीं, आई वाज लेट इन ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। ओके मैम बाय द टाइम जैसे आपका ये 5th अटेम्प्ट था, 4th अटेम्प्ट आपके क्लियर नहीं हुए थे, प्री नहीं हुआ था, जी राइट मैम? यस 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 तो ऐसे में मैम आपको ऐसा एंग्जाइटी या ऐसा एंग्शियसनेस नहीं आया कि कुछ और देखना चाहिए, लुकिंग टुवर्ड्स द एग्जाम की, क्योंकि अभी समझ ही नहीं आ रहा कि प्री मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं? फीलिंग एक आई कि हम सही जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही एक प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही निकल रहे हैं, राइट? तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसे एंग्जाइटी आती तो हाउ डू यू मैनेज इट, और हाउ डू यू divert your mind, or how do you encourage yourself to be still on the preparation? क्योंकि पता है मैंने ये चीज सोची थी कि आपका मेरे पास कोई प्लान भी होना चाहिए, ये चीज मैंने भी सोची थी। इट्स वेरी नेचुरल टू थिंक अबाउट दिस, बट एट द एंड ऑफ द डे अब की बार वाला जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, मैंने ये सोच के दिया था कि अब की बार अगर नहीं होगा तो आई विल चूज एनीथिंग एल्स इन माय लाइफ। तो ये चीज बहुत नॉर्मल है, और इससे कैसे निकलना है वही चीज मैं बोलूंगी कि आप ये खुद के लिए डिसाइड कीजिए आप कितना और टाइम दे सकते हैं इस चीज को। वो चीज आपको खुद के लिए एक बार डिसाइड करना बहुत जरूरी है, वरना वरना ये चीज हमेशा तंग करेगी, तंग करती है। मैं बहुत क्लियरली ये चीज मानती हूँ कि तंग करती है, एंग्जाइटी होती है, मतलब वही। लेकिन फिर ये थोड़ा योगा मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया, मैं सीरियसली बता रही हूँ, योगा और मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया। और उसके अलावा आप आपको पता चल जाएगा कि आप एफर्ट कर रहे हो, कितना कर रहे हो। थोड़ा वो चीज जो है वो आपको कॉन्फिडेंस और एक होता है सेटिस्फैक्शन देती है कहीं ना कहीं। फिर इसके लिए कोई मतलब मेरे साथ भी हुआ था, बहुत नेचुरल चीज है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ था। डील करने का तरीका शायद अलग अलग हो सकता है, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, योगा मेडिटेशन जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप अपना ये सोच सकते हो कि आपका कट ऑफ ईयर क्या होगा इस एग्जाम को देने के लिए, मतलब उसके बाद मैं नहीं दूंगा टाइप्स। तो ये चीज, और उसके साथ बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आते हैं या फिर बहुत सारी कंडीशंस के साथ ये चीजें डिसाइड होती है। तो आप थोड़ा पर्सनल हो गए उस चीज में, वो हर किसी के लिए अलग 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 होती है। तो वो चीज आपको गॉज करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। लेकिन ये चीज होती है, ये बहुत नेचुरल है, जो आप फील कर रहे हो ये बहुत नेचुरल है। बस थोड़ा डील करने का तरीका अलग हो सकता है लोगों का, हर किसी का अलग होता है। जैसे अब की बार मैं प्री थी तो मैं ये सोच के आई थी कि अगर अब की बार प्री नहीं होगा ना तो मैं छोड़ दूंगी प्रिपरेशन। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, बहुत क्लियरली ये चीज बोल रही हूँ, तो बहुत नेचुरल है। लेकिन अगर आप खुद को टाइम दे सकते हो, जैसे इस प्री तक का टाइम दे सकते हो खुद को, तो प्लीज फिर मत सोचिए। एक बार डिसाइड कर लिया कि अब की बार का प्री अच्छे से देना है तो फिर प्लीज मत सोचिएगा, अच्छे से फिर अटेम्प्ट दे के ही फिर सोचिएगा कि क्या करना है। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम, आई जस्ट वांट टू आस्क यू रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ओनली कि लाइक अभी बैक टू बैक फेलियर तो आ गए, तो हम क्या इसी के साथ स्टेट सर्विसेज दे सकते हैं या कोई और एग्जाम भी ट्राई करना चाहिए, लाइक ऑन दिस पॉइंट? आप स्टेट सर्विसेज देख सकते हैं। Shelly, let me take up these questions, one or two questions, and Shelly, then फिर हम continue करते हैं दोबारा, ठीक है ना? जी जी सर, किसी और हाँ दिन, क्योंकि ठीक सर ठीक, थोड़ा हाँ ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? जी सर, जी ओके जी। ओके Shelly, thank you बाय for your time. Okay, bye. थैंक यू एवरीबॉडी, या बाय बाय। Yes, with the backup side,
प्लान बी कि प्लान बी होना चाहिए कि नहीं, it depends on you. Like I have seen many there are candidates who were giving their all 6 attempts, so they were having full family backing, financially, emotionally, everything. There are candidates who get support in 1 or 2 attempt, then they don't. Okay, as far as backup is concerned, and if your goal if your goal is limited to civil services only, and if you want to enter here, let me show you two sides to this. Okay, one side is, as of now you are adult. Okay, you are young, you are adult, you can take the risk in your life, in your career. Once your attempts are exhausted, then at the end of your career you will reach to a stage where you will not see many options available to you. Got it? So like there are Aparna was the topper, rank 35, and she was like कि sir बस 2 ही attempt देना है फिर देने नहीं है, because she was having a better alternative career, and she was like कि sir अभी young age है, alternative career बनाना है, बन जाएगा, फिर बनेगा नहीं. तो एक ऑप्शन ये आता है कि you keep on thinking about your alternative career, if not civil services then what. And if you want to continue the journey like others do, then go for the examination. When it comes to the examination, I will suggest state services and central government job, because in central government job you will find conducive environment for the preparation. Generally in central government job you will find very good officers, very good environment for the preparation. The same kind of environment you will not find in the state government. So if you are aiming for the state, try to get the best rank, try to get the best service, so that even after down the line 10-12 years you will be promoted to IAS or IPS. And if you are not getting into state, go for central government jobs. These are very good jobs and you will find very good environment. And third is thinking about alternative career. So these 3 options are available in front of you. Okay. Okay, sir. Sir, question Yes. from me. Sir, I have also failed prelims and I've lost this prelims because of CSAT. So obviously GS paper 1 I've got more marks like ma'am. So I should be focusing on CSAT from now on, right, sir? Yes, you should be focusing on the CSAT, and you have to see, look, in CSAT why students are failing. Again, I'm repeating the same thing. First, they are ignoring the CSAT. Second, they are not working on their strength. In CSAT, you need to qualify this. You need 67 marks. To get those marks, you have to identify your areas. Okay, these are my strong areas. I can do good. Suppose those who have done engineering and there is a topic called probability. In engineering, in mathematics, some struggle with the probability throughout their life. I was very good in mathematics in my schooling, in my college, but I struggle with the probability. So I leave that topic. Hardly 1 or 2 questions will come, but I'm good in other side. So you have to find your strength, then practice the previous year question, as Shelly has said. Last thing I would say, try to increase your number of attempts. People who are attempting 30, 35, 40 questions, they are on risk, because in comprehension you cannot be sure that this is the answer of this particular question. So yes, you should be practicing CSAT, but by keeping these things in your mind. Yes, sir. So but mains, for mains also I should be compensating, right, sir? Because preliminary marks is on higher side, so there is a higher chance if I Definitely. give prelims next year. So Yes. main option, how should I compensate during these days, sir? Have you done your optional? Yes, sir. Yes, sir. I have finished my optionals. Okay, very good. And what about GS? Sir, I'm not a newcomer to this preparation. So I have it has been my 6th attempt and I've failed prelims continuously. So like you have said, mains and not in touch in it, sir. Actually, mains and optionals I've done in
3 years back, sir, like a proper optional student. I was 3 years is a yes, yes, too sir, yes, long, sir, too yes, long sir, time. yes, sir, So, yes, sir, so what you have to do ki as of on the priority basis, pick yes, your sir. optional, read it, revise it, and try to solve previous year question. Okay, sir. In the GS, there are 4 papers: GS1, GS2, GS3, GS4. Yes, sir. GS4 is core mains. GS3 is core mains. You will not find any question from GS4 in prelims. You Yes, will sir. find 2-3 question from GS3 in the prelims. Maximum question you will find from GS1 and GS2. So as Yes. of now, your priority should be to finish GS4 and GS3. Okay. Then in GS2 and GS1, society, social justice, governance, and IR, these 4 topics are there. Yes, sir. You should try to finish it, because from the month of January, when you start preparing, let's say GS2, then ultimately you will be doing prelims cum mains preparation, Yes, sir. right? One Yes, of sir. my friend who failed in prelims 7 times, and in his last attempt, 8th attempt, he cleared the prelims, and he not only cleared the prelims, he cleared the mains. Reason being, he was preparing for the mains, and during interview time he was in panic mode, so he was not able to get very good marks, and he missed the final cutoff by roughly 20 marks. So the thing is, even if you are failing in prelims, your priority, your aim should be that if I will get one chance to appear in the mains, then I should give my best, Yes, sir. right? Yes, sir. So this is how you should plan your mains preparation. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so Okay. much. Okay, welcome. सर मैं Anyone? या Yes. रमेंद्र Yes, Ramendra. ओके सर मेरा सिर्फ छोटा सा ये डाउट है कि डाउट इन द सेंस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स वाइज उसको लेके अगर आप एक डिस्कशन कर पाए या फिर अभी आप टिप्स बता रहे हो तो सर, क्योंकि वो एक चीज है जो अभी तक फिगर आउट नहीं हो रही कि उसको एनालाइज करना कैसे है। ओके यार देखो, इस पे ना सेशन होने वाला है, डेफिनेटली देयर विल बी सेशन ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड सून वी आर गोइंग टू हैव प्रॉपर डिस्कशन ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी. ओके, बट लेट मी गिव यू ए क्लू. देयर आर 100 क्वेश्चन in the prelims paper. Okay, there are Yes, sir. 100 question in the prelims paper. For you these are 100 questions, for me these are 1000 areas. Okay, for you these are 100 question, for me these are 1000 areas. Suppose there is a question on modern that they have given some name of some personality, let's say Baba Ambedkar Sahab, and they have given you 4 options that which of the following organization was started by Baba Sahib. Okay, in previous year question you found the answer and you think your job is done. But for me your job is not over. What about other 3 organizations who started those organizations? Because next year you will find question from out of these 3 or these 3 things. So rest 3 organization you are not touching. So you are not doing previous year question analysis. In environment question they are giving you some organization, some report or some of the things, and rest options may be not linked with that, but it is your duty to check what about the rest options. And even if you do from 2013 to 2021 previous year question analysis, apart from history, for history you have to go back, no doubt about it. But apart from that, for economy, geography, polity, environment, science and tech, you do from 2013 to 2021. Then you will find that many questions you will find in the prelims, many questions. So you have to pick the areas. So previous year analysis does not mean you have seen the question, you have found the answer and you are like, okay. These are the areas, and in the prelims horizon of knowledge matters, and it matters a lot. Like the more you know,
about particular organization, their report and other things, the better for you. Sir, I have a question. Like in the case of World Bank, there is a index called ease of doing business, right? Yes, sir. Earlier UPSC used to ask the question that which organization has this particular index. Okay, so the option was World Bank. Everyone is happy that sir I have done the previous year analysis. In 2018 or 19, I'm not able to recall, UPSC picked the parameters that tell us that which of the parameters are being used by the World Bank to prepare ease of doing business index. So sometimes they enter into deeper side. So you have to see. Okay. Sir. Hello. Yes. Hello. Yes. Actually, Yes, my Preeti. question. Yeah. Actually, sir, my question is that I have not writing any kind of answer writing. I'm focusing only on prelims and doing my और ये answer. कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था लेकिन प्रीलिम्स फेल हो गई मैं. तो इसलिए मेंस की तैयारी ज्यादा करी नहीं है. हाँ, तो सर और आंसर राइटिंग का बहुत ज्यादा डर लगता है सर. देखो एक तो ना ये आंसर राइटिंग को इतना बड़ा बना दिया है ना कि जिसकी वजह से ना लोगों को डर लग गया है. अब लोगों को डर ये लग गया है ना कि परफेक्ट आंसर ही लिखना है, जब लिखना है, एंड परफेक्ट आंसर डज नॉट एग्जिस्ट. सो इन द परस्यूट ऑफ राइटिंग द परफेक्ट आंसर, कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू स्टार्ट द आंसर राइटिंग. If your first answer is very good, then you do not belong to this UPSC cycle. You belong to somewhere else. Okay, because your first answer is the best one and your first answer would be the worst one. But Okay, you sir. have to start. The Yes. thing is, students hear the topper that you have to do the answer writing without preparing the content. Without preparing the content, if you are entering into answer writing mode, you will not be able to write the answer. Are you getting it? Yes, sir. So first and basic requirement is the content. So you have to check whether you have studied a particular topic or not. For example, some of you might be thinking that I have to do answer writing and I will do it from tomorrow. Let me give you a question that explain the rise in the insurgency in Northeast India. And you have no clue. Okay. That what kind of organization are working there, what is the status of insurgency there, what is the background of insurgency in Northeast, what is the current happening. So in some of the website you will find they give everyday question. Okay. And recently in Manipur, in one of the incident, colonel and his family and some of the army officers, they were being ambushed in IED attack. So from that news clip, they will give you the question. And you read that news and you are happy that, okay, I was able to write. But in UPSC, they will ask you generic question. And that particular website will claim that, look, from our website, this particular question came. But that is not true. Because UPSC is asking holistic question about the Northeast insurgency per se. So first is content. So you have to check the content, whether you have the content or not. Second thing is, while going for the answer writing, read the previous year question. By reading the, like in the prelims, previous year questions are important. Same applies in the mains. When it comes to GS and the optional, previous year questions are very important even in the mains. So read the previous year question, try to frame the answer. That is your first task. Okay, and sir. once you have the content, then enter into the proper answer writing mode. Otherwise you will end up doing answer writing, you will be happy, but that is a fake satisfaction, and in UPSC you will struggle to write. Okay. Yes, sir. Right, sir. Yeah. Sir, I have last attempt remaining.
which I'll be Okay. giving in 2023, sir, because I have some personal issue for this attempt. Hmm. But sir, I'm Hmm. planning to give IFOS only this time. Okay. So will it be considered as sixth attempt, sir, if I give only IFOS? No, Will no, that no, option be, no, will that no. option be separately available? I just want to confirm. Yes, that. yes, 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 Okay. yes. And moreover, Separately sir, I just available. wanted to take one break after this series of failures. So so that I could be ready नहीं, with ठीक है. this 2023. Yes, yes, थोड़ा break जरूरी है. It is fine. It is fine. Yes. Okay. Right? Hello, Yeah. sir. Last one question I will take, and then again we'll continue with Shelly. Yes, Mukesh. Hello, sir. Yes. Yeah, Manish, sir, this side. Yes. Sir, Yes, Manish. actually, this was my second attempt, and in the two attempts, I have been able to figure out one pattern, that is my weakness of history. So this time, I out of 21 history questions, I attempted 13 questions, and I did like 2 correct, and rest were wrong, and I missed prelims by 5-6 marks. I was scoring around 83, 84. So I still don't have any comprehensive plan for history. First year also, in the first attempt also, I think history was the issue for me. So how to go ahead about it? How many books you have for this history? Sir, I have just read Spectrum, and for ancient and medieval, I have notes. I guess 200-page notes. That's it. And which particular coaching or institute notes? Yeah, Vision IS notes, sir, for ancient and medieval. You have to read the I had been themes. through You Telegram have to videos read. and I made notes of. No. You have to go through the themes. History themes, new Okay, NCRT. UPSC is picking some of the question from there. Then go for the previous year question. Okay. UPSC is picking question from there. Themes you must do. I think 12th class, themes 1, 2, 3. Okay. New Okay, sir. NCRT. Yeah. This much you have to do for the ancient and medieval. For art and culture, there is a old PDF of Yes, GK sir. today. Old PDF of GK today. It is bulky, Okay. around 200 pages. But once you do it, then you don't have to worry about art and culture. So this question of Ajanta river, that all these things were there, and that is a very old PDF. I think 2013 PDF. But one of the most comprehensive material on art and Yes. culture. Why I asked you how many books you have, because others might be having NIOS, then this topper book, that topper notes, nothing. GK today, old Yes, sir. PDF 2013 one, that is sufficient. If you will Google it, you will find it. Okay. And in history, you have to put Yes. some effort, because nowadays many questions are coming. Hello, sir. Yes. सर मैं ये पूछ Yes, रहा Mukesh. था जैसे हाँ मुकेश. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टर्म दे दिया, उनका एप्लीकेशन पूछ रहा है यूपीएससी, तो वो सब यार क्वेश्चंस किसी ने, यार पता है क्या है, देखो साइंस एंड टेक में ना देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन. One type of question that is basic science and tech. Okay, that is very basic science and tech, and we can do it. We can do it by having static knowledge, by having some current affairs. Other is weird kind of science and tech, some particular material, some particular element. By luck, if you read that somewhere, you are lucky. Otherwise, we cannot prepare such weird topics, I would say. I would not say these are very good topics. These are very weird topics, and whomsoever is setting the paper, I don't know which newspaper that particular person is following, because you will not find such kind of terms and other things. And for the application part per se, for example, a particular phenomena and other things, for that there is one photocopy you will find in old Rajendra Nagar, and even you can find it online. Biology 12th class, last 4 chapters. For environment,
as well as some of the topic you will find and some of the terms you will find that these terms might help you in science and tech. Biology only last 4 chapter old NCERT, that is not new. If you are going to purchase, please do not purchase the new one. Old NCERT photocopy, again I'm saying old NCERT photocopy of last 4 chapters. I think chapter number 9, 10, 11, 12, if I'm not wrong, if I'm able to recall correctly. And when you check it with the photocopy shop, they will give you. Okay. Okay sir. और sir art and culture का GK today, one of the best material. okay. सर इस बार के क्वेश्चंस भी उससे बन जाते हैं क्या? जैसे इस बार तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल था art and culture. बन जाएगा. ओके सर. उससे क्वेश्चन बन जाएगा, थीम से बन जाएगा. लाइक लुक, अजंता कौन से रिवर पे है, ठीक है? इससे पहले एक क्वेश्चन था विजयनगर का, पूछा था तुंगभद्रा वाला कि हम्पी इज सिचुएटेड एट, वो वाला एक क्वेश्चन था. तो वो बस इलिमिनेट किया, आई थिंक 2019 में था वो, सिर्फ वो इलिमिनेट किया तो आंसर निकल रहा था. तो यूपीएससी वो थोड़ा सा पिक कर रहा है कि ये साइट कहाँ पे है. तो अजंता वागोरा रिवर पे है. फिर एलिफेंटा का भी कर लेना चेक, अगले साल वो एलिफेंटा पूछेंगे तो वो चेक कर लेना, है ना? तो वो सब जीके टुडे में है. जीके टुडे का वो बहुत अच्छा मटेरियल. ओके. बट ओल्ड वन, आई थिंक 2013 वन, not new one. Okay. So okay guys, फिर again we'll take up the session with the Shelly and then we'll take up the questions again. Okay, and whatever doubts or whatever questions you have, please have it with you. Then we will be having session on CSAT, like proper session topic wise. One session we will be having one previous year question as you have asked. Any other session you need from our side? Sir, are you taking any new mentorship program for this 2022 prelims? Yes, 2022 prelims we are starting from 27th of November. So what would be the procedure like? How would you go we about will it? share. Okay. We will share on the channel. Sir, one last question I have. Yes, Shikhar. Sir, this was my second attempt. In first attempt, sir, I scored 91.84 in GS1, and sir, okay, in this attempt, I was scoring sir 92.33 to 93, 93, 98. 91.84. Sorry, in 2020 attempt. 2020 और कट ऑफ के तो बड़े पास ही थे यार तुम तो. सर वही सर, मतलब कि एक्चुअली सर मैं क्या करता हूँ एग्जाम में कि ओवर थिंक कर देता हूँ काफी, ठीक है? जैकी अब की बार डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्वेश्चन आया था, ठीक है? तो पहले मैंने ए किया था, ठीक है? फिर डी ऑप्शन था, उसमें था कि लोअर अथॉरिटी अंदर हायर अथॉरिटी, ठीक है? तो उसको देख के मेरे दिमाग में आर्टिकल 12 दिमाग में आ गया, ठीक है? आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया. तो सर just give me a second.